Good morning, students. I'm Pragati, your psychology teacher, and today I'm going to continue the psychological disorder chapter 4, and the topic is schizophrenia. In this topic, yesterday we have talked about the positive symptoms, negative symptoms, as well as the psychomotor symptoms. But today we are going to understand the positive symptoms in more detail. Okay, so for understanding the positive symptoms, we need to understand, just quickly revise the yesterday's symptoms, and then we talk over the important topics. Okay, so as we have done that, positive symptom is what? In schizophrenia, the symptom which excessively thought or emotions and behavior, means a person or a patient or a subject, whatever we can say, that he's been having a one kind of excessive kind of thoughts which has been coming in her or his mind, and then a behavioralistical change we can see, that is where a person is being completely emotionless or full of emotions. He cannot control the emotions and feelings. Sometimes the face remains completely pale, and sometimes it is full of aggressiveness and doubt, everything. And okay, then we have talked about the delusion, that is irrational belief. Just like an illusion, delusion is also something in which a person is having such kind of beliefs or thoughts which are not in reality, is not possible. Okay, these beliefs are the something which is not present in the environment or in the situation, but he is been thinking from his fantasy world or in her or his subconscious mind. Okay, then disorganized thinking, in which we have understood that a thinking which is not completely organized, where a person is talking about different things or non-valuable or irrelational things are being talked about by the person who is suffering from schizophrenia. Okay, then disorganized speech. Disorganized speech क्या है? जिसमें हम ये चीज़ देख रहे हैं कि पर्सन क्या बातें कर रहा है, और जो उसकी बातें हैं वो कम्प्लीटली नॉन वैल्यूएबल और नॉन रीजनेबल होती है. इसमें ये भी चीज़ हमें नोट करनी होती है कि दैट द पर्सन इज व्हाट ही इज बिन टॉकिंग अबाउट इज एनीवेयर possible or related to his past or not. So everything we will seeing in that, and that speech is not available, not, we can say that it is not so meaningful. Okay, and whatever you are listening, or whatever you are being conducting over the person, over the subject during the MSc, at that point of time you see that the speech of the person is completely unorganized. Then hallucination, I have told you yesterday about that it is about auditory or visually. Other types are also there, which we are going to understand in today's topic. Okay, so first we move towards delusion, which is also known as irrational belief. In this, we need to understand that how many kinds of delusions are there and what effect these delusions are conducting over a patient. Okay, so delusion of persuasion is something in which a patient or a schizophrenic person thinks that he is being plotted, or someone is spying over him, or some things are being plotted against him. This can be negative thought. Most probably it is maximum time it is a negative thought, in which he thinks that somebody is there behind his back, or someone is there in his life who is watching him from a far distance. Spy जिसे हम कहते हैं, या फिर छानबीन करना, या फिर चुपके से उस पे नज़र रख रहा है एक ऐसा पर्सन जो उसे मार देगा. ठीक है, who will murder him or kill him, or who want to end due to whom his life is in danger. Okay, so that is something which is being formed by the patient. So आप अगर पूछोगे कि आप क्यों घबरा रहे हो, why are you afraid of, या आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसमें आप उनसे उनके बारे में पूछ रहे हो, then you will be getting that
कि वो पर्सन कहेगा, उसका रिप्लाई होगा कि कोई मुझे मारना चाहता है, एक आदमी है, मुझे अक्सर दिखता है और उसके हाथ में चाकू होता है और वो मुझे मारना चाहता है। इस तरह के रिप्लाई आपको मिलेंगे। आप उस पर्सन की डिस्क्रिप्शन पूछोगे तो वो वेल एक्सप्लेन डिस्क्रिप्शन भी आपको देगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट इज़ कम्प्लीटली imaginary. Okay, when you find out, or even this can also affect that sometimes the person go to police station and complain about the person whom he is having a doubt of that this person is going to kill me. Okay, actually में वो person नहीं होगा, वो description जैसी दी जाएगी वैसी description related कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो क्योंकि इस डिल्यूजन में है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अफ्रेड में उनकी ये जो बिहेवियर है, फर्स्ट रिस्पॉन्स यही होता है कि वो पुलिस स्टेशन पे जाके कंप्लेंट्स भी कई बार करते हुए दिखाई देते हैं। मिलते हैं ऐसे पेशेंट्स जो कि ये कहते हैं कि मेरे पीछे कोई स्पाई है या किसी ने मेरे अगेंस्ट मर्डर प्लॉट किया है जो मुझे मार देगा। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट इज delusion of reference. Means in this there is an attached message. For example, he's been conducting a message or he's been depicting you a message which is being given by some celebrity according to his thought of mind. Actually there is no one. For example, if you are if I'm a patient and the examiner the counselor have come and asking me that what you are reading, okay, या फिर why are you sitting like this, तो आपको जो पेशेंट है उसका रिप्लाई होगा, मुझे ना प्रधानमंत्री मोदी ने मैसेज भेजा है अभी अभी कि वो मुझे कल मिलने आ रहे हैं 10 बजे, अभी मुझे बस मैसेज मिला है। वो कहेंगे कहाँ है मैसेज दिखाओ, तो वो आपको इसी तरह से अनफेक्ड आपको कोई फ़ोन दिखा देंगे, ये देखिए मैसेज है इसमें, या फिर कहेंगे मुझे मेरे माइंड ने बताया है, मुझे मेरे दिमाग में अभी मैसेज आया है, उन्होंने मुझे दिल से याद किया है और वो मुझे सुबह 11 बजे मिलने आ रही है। उन्होंने खुद ही कहा है, ये बात अनाउंसमेंट भी हो रही है, आप सुन सकते हो ब्रॉडकास्ट पे। तो इस तरह के रिप्लाई आएंगे जो कि होते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, वेयर दे आर गिविंग एन अटैच मीनिंग और मैसेज, वेयर he has been attaching that meaning or message with a personality or with any celebrity or with anyone who is not actually interrelate or interlinked with that person. Okay, now delusion of grandeur means it is something in which we have been empowered. He is being empowered by someone. Here he has been thinking himself in the place of God or a powerful man or something like a superhero. He's been considering himself to come in the life or he's been living for some motto. So उनका रिप्लाई इस तरह से होगा। अगर आपने पूछा कि आप उनको देखोगे और आप पूछोगे कि आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, तो कहोगे कि आप मुझसे रिस्पेक्ट से बात करो, मैं महादेव या फिर मैं शिव जी का अवतार हूँ या मैं गणेश जी का अवतार हूँ, मैं यहाँ पे एक उद्देश्य लेके आया हूँ, मैंने बुराई का नाश करना है और मैं वो ही कर रहा हूँ और मैं ऐसे ही करता रहूँगा। इस तरह के रिप्लाई आपको मिलेंगे। दैट इज समथिंग रिलेटेड विद द डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। ठीक है, इसमें पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल मानता है और अपने आप को किसी का अवतार मानता है। ओके, सो ही इज बीन कंसीडरिंग हिमसेल्फ अ वेरी पावरफul person and also thinking himself as a face or a role of someone and with a message to give a message by God in form of him. Okay, now delusion of control. Delusion of control क्या होता है कि thoughts are controlled by others, जहाँ पे जो thoughts दूसरों के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। यहाँ पे मेनली क्या चीज़ है, उस पर्सन की थिंकिंग में स्पेशली इन अ फॉर्म ऑफ ऑडिटरी हेलुसिनेशन, वो आपको एक चीज़ बोलेगा कि आपको कोई ऐसा अनवांटेड मैसेज देगा या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ बोलेगा जिससे जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, पर वो कहेंगे कि ये मैसेज आया है और ये मैसेज मेरे मालिक ने भेजा है, अभी मुझे और ये आप रेडियो चलाओ, ये फ्रीक्वेंसी चलाओ, इस फ्रीक्वेंसी पे आपको ये मैसेज मिलेगा
और वहाँ पे होता नहीं है ऐसा, बट उनको वो चीज़ लगती है। ओके, और वो कहते हैं कि वो मैसेज हमें दिया जा रहा है, कोई और मेरा दिमाग चला रहा है, जैसे मेरा मालिक या जैसा मेरा वो माइंड मुझे कहता है मैं तो वो ही काम करता हूँ। अब वो गलत है या सही वो तो उन्हें पता है, और वो करा रहे तो अच्छा ही होगा। इस तरह के रिप्लाई आपको मिलेंगे delusion of control में, means where a person has been controlled by the other person and according to his perception or according to his thoughts and thinking, this delusion is being controlled or the thoughts are being controlled by the other person. Okay, so this is something which is relate with the delusion of persuasion, delusion of reference, delusion of grandeur or delusion of control. Okay, in this all the things, what is the main thing is that inappropriate effect of emotions. Inappropriate effect of emotions हम क्यों बात कर रहे हैं? Because whenever you are talking about any other topic, okay, whatever topic or whatever you've been asking the person, he has been not going to show you actual emotions, and his emotions will be always non-appropriate, non-linked. Okay, for example, you are talking about something happy and the face expression will be pale or very sad or not, you cannot recognize that face expression, sometimes it's created in such a point. So then it is the inappropriate effect of emotions. Emotions जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं, और फेस आपको मोस्टली पेल फेस दिखेगा जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है. ओके, नाउ फॉर्मल थॉट्स एंड डिसऑर्डर, इसमें क्या है, इसमें शिफ्टिंग ऑफ थॉट्स होते हैं. जो पर्सन है जो स्किज़ोफ्रेनिक है उसके थॉट्स बार बार शिफ्ट होंगे, वो एक पॉइंट पे एक थॉट पे ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं. ओके, there is a shifting of thoughts. For example, you are talking about the food he ate in the morning and all of a sudden he start talking about any dress or about a hill station or something. For example, I am a counselor, I ask a schizophrenic patient that आपने सुबह क्या खाया, तो उसका रिप्लाई होगा, कई बार वो रिप्लाई दे भी देगा मैंने सुबह खाना खाया, पर फिर उसके साथ इंटरलिंक्ड रिप्लाई आ जाएगा कि जो मैंने माउंटेन वाली वो बनाई थी ना पेंटिंग, वो बहुत अच्छी थी, तुमने देखी. इस तरह का रिप्लाई जो है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में देखना होता है, वो होता है शिफ्टिंग ऑफ थॉट्स, जहाँ पे एक थॉट से दूसरे थॉट पे शिफ्ट हो जाएगा पेशेंट ऑल ऑफ अ सडन, और दोनों इंटरलिंक नहीं होंगे. आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके जो पर्सन का आंसर है वो कभी भी आपको नहीं मिलेगा. ओके, नाउ फॉर्मल और थॉट डिसऑर्डर जो है, इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, लूजिंग ऑफ एसोसिएशन. ऑब्वियसली जब यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है थॉट, वन थॉट से अब दूसरे थॉट पे शिफ्ट हो रहा है पेशेंट, और जो दूसरा थॉट है वो कभी भी फर्स्ट थॉट के साथ लिंक नहीं करेगा, और आपके क्वेश्चन जो आपने उससे ड्यूरिंग द सेशन पूछा है वो उस तरह का रिप्लाई नहीं देगा आपको. फिर है डेलिरियम, दैट इज समथिंग इन विच ही इज़ नॉट ओवर द ट्रैक, मतलब बात करते करते वो अपने ट्रैक से भटक जाता है. ठीक है, इसमें क्या, जैसे ट्रेन है एक ट्रैक पे चलती है कंटिन्यू, लेकिन अगर वो एक ट्रैक से ऑल ऑफ अ सडन गिर जाएगी, है ना, तो सिमिलरली द पेशेंट इज ऑल्सो अबाउट, ही इज बिन टॉकिंग अबाउट हिज रूटीन एंड ऑल ऑफ अ सडन वो 1964 में पहुंच जाएगा, और फिर वहाँ पे कोई लड़ाई बताने लग जाएगा आपको कि ऐसे ऐसे फाइट हुई थी, वर्ल्ड वॉर होगी, जो कि लिंक्ड अप नहीं है, और पेशेंट की जो एज है वो शायद 18 साल ही हो, तो आप वो चीज़ को देखोगे कि वो ऐसी बातें करने लग जाएंगे जो कि आप उनकी लाइफ में कहीं भी लिंक्ड अप नहीं है या उनके पास में कहीं भी रिलेट नहीं करती है. सो दैट इज द थिंग, मीन्स ट्रैक जो है वो एकदम चेंज कर देते हैं. नाउ नियोलॉगरिज्म मीन्स न्यू फ्रेजेस बनाने लग जाते हैं. नियोलॉगरिज्म में उनके न्यू फ्रेजेस बनेंगे. लेस फॉर एग्जाम्पल, अब we know that there are some kind of thought, grammar, way of communication, language is there, but उनके जो thoughts हैं वो उनका एक phrase बन जाएगा, snake sitting on table, fall down.
आप कहोगे इसमें ना ग्रामर सही है और ना ये कोई टॉपिक लिंक्ड है मेरी बात से, ना कुछ, और ये क्या बोल रहा है ना। तो उसकी जो लैंग्वेज है उसमें आपको कोई नए ही फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दिखने लग जाएगी, नया ही अपनी तरफ से एक फ्रेजल वर्ब और कुछ दिखने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब पेशेंट जो है वो अनएजुकेटेड है, हिंदू उनकी जो बैकग्राउंड है, मदर टंग है वो हिंदी है, और वो एकदम से इंग्लिश बोल दे, और वो भी बिल्कुल जो कि उसने कभी कहीं सुना नहीं था वर्ड, ठीक है, कम्प्लीटली ऑन नॉट ऑन द ट्रैक, तो वो क्या होगा, वो जो चीज़ है वो ऑब्वियसली ऑड लगेगी। सो दैट इज समथिंग रिलेटेड विद द नियोलॉगरिज्म। नाउ the third is perseveration. Perseveration is something in which repeating of a single topic. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट जो है, खाने के बारे में आपने उससे क्वेश्चन पूछा था, अब उसने आपको बताया कि सुबह मैंने खाना खाया, पर वो जो आपने माउंटेन वाली सीनरी है ना वो देखी थी, अब वो माउंटेन वाली सीनरी पे आ गया है, उसका टॉपिक शिफ्ट हुआ है, अब वो उसी टॉपिक पे रहेगा जब तक वो आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। आपने टॉपिक चेंज कर लिया कि चलो ये तो मेरे को आंसर नहीं दे रहा खाने का कि क्या खाया कुछ, तो अब आपने टॉपिक चेंज किया और आपने पूछा पेशेंट से कि अच्छा आपकी फैमिली में कौन है, वो माउंटेन वाली सीनरी पे ही बैठा रहेगा। आपने वो माउंटेन वाली सीनरी देखी, वो मैंने बहुत अच्छे से बनाई थी, उसमें मैंने ये कलर्स यूज़ किए, मैंने ऐसा किया, आप कह रहे हो आपकी फैमिली में कौन है, फैमिली में बताओ कि कौन रहता है आपकी फैमिली में, मदर फादर है, वो कहेगा आप मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ ना माउंटेन वाली फील के बारे में, तो उसमें आपको एक एग्रेसिवनेस भी दिखेगी जब आप उसकी बात नहीं सुनोगे, ओके, इरिटेशन और एग्रेसिवनेस दिखेगी, और उसकी वॉइस जो है वो लाउडर हो जाएगी। पहले आराम से बता रहा है आपको एज एन फ्रेंड, जब आपने टॉपिक शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो तब वो उसकी वॉइस जो है वो लाउडर हो जाएगी, ठीक है। तो परसुएशन जो है इसमें रिपीटिंग ऑफ अ सिंगल टॉपिक होता है अगेन एंड अगेन, एंड द टॉपिक विच ही इज बीन टॉकिंग अबाउट इज नॉट रिलेट विद योर क्वेश्चन, ओके। So this is something which is related with the delusion and disorganized thinking and speech. Now coming over hallucination. हेल्यूसिनेशन जो है हम मेनली बात करते हैं कि विजुअल और ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन होती है, बट इसमें और भी टाइप्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द टाइप्स एंड व्हाट आर देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। दे इन दिस ऑलवेज अ पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द सेकेंड और द थर्ड पर्सन, ओके। सो there is someone as with him according to his thinking, or according to him the person is talking with the that schizophrenic, and sometimes he always sometimes he says that person is visible, and sometimes he says that only the voice is available, okay। तो वो जो पर्सन है सेकंड या थर्ड पर्सन जिसके बारे में वो बात कर रहा होता है, उसकी बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन देगा कि वो एक लड़की है। आप पूछोगे उससे कि अच्छा आपको जो आवाज़ आ रही है या जो आपका दोस्त है वो कौन है, आप फॉर एग्जांपल उसे विजुअल दिखता है, तो आप कहोगे आपको जो आवाज़ आ रही है, वो आप करेक्ट करेंगे वहाँ पे, नहीं मेरी दोस्त है जो मेरे साथ बैठे है। कहेंगे आपकी दोस्त कौन है, लड़का है, लड़की है, कौन है, वो लड़की है, 18 साल की है, उम्र भी बताएंगे, सब डिस्क्राइब करेंगे उसके बारे में, और फिर बताएंगे अच्छा वो आपको क्या कह रही है, वो कह रही है आप चले जाओ मेरे दोस्त नहीं हो, इस तरह से जवाब आएंगे आपको, ठीक है। तो आपको रिप्लाई इस तरह से मिलेगा। और सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन वो फिर कहेगा सेकंड और थर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसे उसने अपनी एक दोस्त के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दे दी, शी हैव गिवन यू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लेडी हु इज सिटिंग बिसाइड हर, ओके ना। सो अब वो पेशेंट अपने साइड में एक लड़की को बैठ के वो उसकी दोस्त है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन शी से कि मुझे अभी अभी भगवान का मैसेज आया है, उन्होंने मुझे बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ओके। तो दैट इज़ द थिंग, इंटर रिलेट भी नहीं कर रही है और वो एक और नए पर्सन को ऐड कर रहा है इन अ फॉर्म ऑफ गॉड और इन अ फॉर्म ऑफ एनीथिंग। सेलिब्रिटी का नाम बोल देंगे कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल ही सेज कि मैंने अभी अभी मेरी एक मॉडल से बात हुई है, शी इज़ इन वेरी इंटरनेशनल मॉडल है, और उसके बारे में वो बात करेंगे, ठीक है। सो दैट इज समथिंग कि वो थर्ड और सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। अब हेल्यूसिनेशन होती है जिसे हम कहते हैं टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन, इसमें टैंगलिंग और बर्निंग, टैंगलिंग मीन्स गुदगुदी करना, ओके। तो उस
आपसे बात कर रहे हैं नॉर्मल और एकदम से हा 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 करके हंसने लग जाएंगे, बहुत अजीब तरह से हंसेंगे, कंटिन्यू फॉर अ टाइम लिमिट वो हंसने लग जाएंगे। और आप कहोगे कि क्या हुआ आपको, ठीक हो आप, तो कहेंगे अरे मुझे कोई गुदगुदी कर रहा है, वो जो मेरी फ्रेंड बैठी है वो मुझे गुदगुदी कर रही है। ऐसे वो जो है रिएक्शंस जो है आपको देखने को मिलेंगे। सो मीन्स कई बार वो कहेंगे कि मुझे कोई गुदगुदी कर रहा है, टैंगलिंग कर रहा है, तो वो हंसने लग जाएंगे। कई बार वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाएंगे और चिल्लाने लग जाएंगे। और जब आप कंट्रोल करना चाहोगे तो वो कहेंगे मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, मेरे बर्निंग हो रही है, मुझे कोई आग लगा रहा है, मुझे किसी ने आग लगा दी। किसी का भी नाम ले लेंगे और कहेंगे उसने मुझे आग लगा दी, मैं मर गया, मैं जल गया, इस तरह से। तो दैट इज समथिंग नोन एज टेक्टाइल। और अपने ऊपर पानी भी डालेंगे आग बुझाने के लिए। तो दैट इज समथिंग इन विच यू बीन फीलिंग लाइक टिंगलिंग और बर्निंग इफेक्ट होगी। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सोमैटिक हेलुसिनेशन। सोमैटिक हेलुसिनेशन में सोमा मीन्स आपकी बॉडी के रिलेटेड होता है। तो सोमैटिक हेलुसिनेशन में क्या है, द पर्सन विल फील दैट समथिंग इज मूविंग इनसाइड हिज बॉडी। ठीक है, उसको अपनी बॉडी पे ऐसा लगेगा कि कुछ चल रहा है। समटाइम ही फील्स के उसके हाथ में जो है बहुत सारे स्पाइडर्स चलने लग गए या स्नेक्स क्रॉल कर रहे हैं, या उसकी बॉडी के अंदर स्नेक चला गया है और वो उसको मारने की कोशिश कर रहा है, खा रहा है, समथिंग लाइक दैट। और वो कभी ऐसे ऐसे मारेगा तो आप कहोगे क्या कर रहे हो। तो जब वो अपने हैंड पे या अपने आप को मारने की कोशिश करे तो वो कहेगा कि मेरे अंदर ये वाला इंसेक्ट चला गया है। फॉर एग्जांपल कि लिजर्ड्स है वो मेरे अंदर चली गई, कुछ भी ऐसा जो उसके रिलेटिवली कहीं डर है दिमाग में, उसी के रिलेटेड कोई एनिमल, कोई स्पाइडर, कोई भी इंसेक्ट का, या ठीक है एग्जाम्पल देके वो आपको बोलने लग जाएगा। मीन्स समथिंग इज क्रॉलिंग इनसाइड, और वो बॉडी फीलिंग ऐसी है लाइक स्नेक इज क्रॉलिंग इन देयर बॉडी। ओके, नाउ थर्ड आफ्टर दिस द विजुअल, इट इज विजुअल हेलुसिनेशन, जो कि मैं आपको पहले भी बता रही थी कि ऑडिटरी और विजुअल दो कॉमन हेलुसिनेशंस होती हैं। विजुअल हेलुसिनेशन जो है इसमें कई बार डिस्टिंक्ट कलर का भी एक हमें एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक ब्लू कलर, अब मैं आप ये बॉक्स को कलर कर दिया, व्हाट विल यू से, ये कौन सा कलर है, मैंने बोला इसको कलर को डिफाइन करो, आप क्या होगे कि ये ब्लू है, बिकॉज मैम आपने ब्लू कलर से लिख रहे हो, ब्लू कलर है। ठीक है, अब जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है व्हाट ही विल से दैट नो इट इज़ वाइट कलर। देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये वाइट है, बिल्कुल आसमान में वाइट बादल होते वैसा वाइट कलर है, एकदम साफ। देखो मेरी शर्ट पहनी हुई है मैंने, वो भी वाइट है, कितनी अच्छी लग रही है, ये भी वाइट कलर है। आप कहोगे नहीं ये ब्लू कलर है, तो कहोगे तुम गलत हो, तुम पागल हो, तुम्हें दिखता नहीं है। इस तरह के वो आपको रिवर्स कॉन्ट्राडिक्ट करके अपनी स्टेटमेंट को ठीक कराएंगे और आपके साथ लड़ेंगे कि नहीं जो मैंने कहा है, जो मैं विजुअली उसकी जो हेलुसिनेशन हो रही है अकॉर्डिंग टू दैट यू कहेंगे कि ये सही है बात, दैट इज कम्प्लीटली राइट एंड दिस इज एन ब्लू कलर, दिस इज नॉट अ वाइट कलर। Or you will say like this, or the person will say no this is white color, you are mad, you can't see, you are having an eye problem, go to doctor, I give you the number, or you tell me I will talk to my God, he will take care of you। इस तरह से बोलकर वो इसको वाइट बनवाएंगे जब तक आप नहीं कहते कि ये वाइट कलर है। ओके, सो यहाँ पे विजुअलाइजेशन विच दे कैन सी विजुअलाइज इन वन और अदर फॉर्म। विजुअलाइजेशन बहुत अलग अलग फॉर्म में है, जैसे कलर विजुअलाइजेशन है वैसे वो पर्सन को विजुअलाइज कर सकती है। सिमिलरली दे कैन विजुअलाइज एनी एनिमल, एनीथिंग विच is going on in their mind. Okay, now next is gustatory। the gustatory hallucination जो है ये है strange taste को लेकर। Okay, he's been feeling something in the taste of the item completely strange। जो actual taste किसी item का है, किसी स्वीट डिश का या किसी फूड का, आपने सपोज you have given him something salty। ओके, नाउ द पर्सन विल स्टार्ट सेइंग कि ये बहुत ज़्यादा बिटर है या बहुत ज़्यादा स्वीट है। इफ़ यू गिव समथिंग लाइक शुगर, हमने शुगर दी खाने को,
तो वो खा के फेंक देंगे। आप कहोगे क्यों फेंक दी, अच्छी खराब है? कहोगे नहीं ये इतना कड़वा है, तुमने मुझे मिर्च खिला दी, ये इसका टेस्ट तो मिर्च जैसा है, ये तो मिर्च है, इट इज़ नॉट गुड। अगर वो कह रहे, वो डिफाइन भी कर रहे हैं टेस्ट के साथ, इज नॉट ओनली सेइंग कि ये कड़वा है, बट वो ये भी कह रहे हैं कि ये मिर्च है जो कड़वी है। तो वहाँ पे उनको गेस्टरी के साथ विजुअल हेलुसिनेशन भी हो रही है जो वो देख सकते हैं। ओके, नाउ olfactory is something related with your smelling power। the smelling जो आपकी वो है उसके रिलेटेड olfactory visualization होती है। यहाँ पे पर्सन जो है, जो कि स्किज़ोफ्रेनिक है, he is been smelling something in a very strange smell, उन्हें लगेगी या something like a poison, और कोई ऐसा धुआं और frustration और something which is being creating any kind of problem in their breathing habit, they start coughing or they start sneezing all of a sudden, and when you ask what happened, तो वो आपको एक strange smell या फिर एक ऐसी चीज़ जैसे लाल मिर्च खड़ा दी आपने। अब आप तो अपने लैब में बैठे हो या आप उनके रूम में बैठे हो, वहाँ पे कुछ कुकिंग का वर्क नहीं हो रहा है, बट स्टिल जैसे आपने लाल मिर्च चढ़ा दी, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, कितना धुआं आ रहा है। अगर धुआं भी आ रहा है तो वहाँ पे विजुअली हो रही है। अगर वो सिर्फ ये कह रही है कि मुझे वो खांसने लग गए, आंखें मसलने लग जाएंगे और कहेंगे कि मुझे बहुत स्ट्रेंज स्मेल आ रही है, लाइक कि आपने कुछ जलाया है, कुछ फाड़ा है, मुझे मारना चाहते हो, इस तरह के, तो वो ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस होती है। ओके, और समटाइम जैसे कि आपने मुझे पॉइजन देने की कोशिश की है, ये पॉइजन है, ये जो आप फूड लाए हो उसमें पॉइजन है, या फिर आप वो आपको कह दे कि आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले जो कुछ खिलाया था वो बिटर था, मैं कह ही रहा था उसमें आपने पॉइजन मिलाया था इसलिए वो बिटर था, हमने तो शुगर दी थी, पर वो तो आप आपको बिटर कह रहे हैं और ऊपर से पॉइजन का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि पॉइजन दे दिया, ठीक है, और फिर मरने की एक्टिंग भी कर सकते हैं उसमें। So that is something which is very tricky. That's why we are saying that schizophrenia is very a kind of a complex disorder which has been found mostly first it was about 100 to 1, 100 ratio 1 के 100 में से एक को होता था, but now time as a time or lifestyle has been changing, it has been also recognized कि about 3 to 4% of population जो है अब schizophrenic हो रही है या देखने को हमें मिल रहे हैं। काफ़ी डिसऑर्डर रिलेटिवली स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज़ रिलेट विद द पॉजिटिव साइड, एंड नाउ ऑन मंडे we will discuss on this topic in our live class, and I will explain you the negative impact of schizophrenia. Okay, thank you and have a nice day.